अभी एपिसोड 2026 में मैट्रिसेस के टॉपिक्स हम लोग कवर करें, उसका क्विक एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, चेक करो। जनरल फार्मूलाज देखो, अगर 2x2 मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, AD माइनस BC एंड A इनवर्स इज इक्वल टू 1/DT इंटू एडजॉइंट A। इसका एडजॉइंट क्या रहता, DA माइनस B माइनस A रहता। ओके, तो 3x3 मैट्रिक्स का तो डेट फाइंड आउट करना आपको आता। अनदर थिंग इज, if a square matrix is there like ABC, it will satisfy an equation, quadratic equation, that is a square minus trace of a plus determinant of I, so is equal to 0 when the matrices is given, it is 3 cos 3। अगर इसका ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हो, ऑटोमेटिकली डिटर्मिनेंट क्या होता है, डायगोनल को मल्टीप्लाई करे तो डिटर्मिनेंट आया था। So if you multiply the diagonal elements, then directly you can write the determinant of the matrices when in the case of upper triangular and lower triangular matrices. Next shortcut क्या रहता, substitution method रहता, वो next समझाता हूँ मैं। Another shortcut is there, if the elements of the matrix are in AP or GP in determinant, then answer is directly 0. No need to do anything, directly tick 0. Now for a skew symmetric matrix मतलब क्या है, A is equal to minus A transpose. So A into A transpose will become identity matrix which is called orthogonal. Orthogonal का मतलब क्या है, if you multiply and add the rows or columns, you will get 0. Like A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. इसी तरह ऐसा भी करें तो सेम 0 आता। Adjoint of A into adjoint A or adjoint into A into A is determinant of A. Adjoint of adjoint A क्या होता है, determinant of A power n minus 2 into A. Data of adjoint of A is equal to data of A whole power n minus 1 whole square. ये important है, ज़्यादा ट्रिक्स में आ जाता। ओके, नेक्स्ट कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। सो अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं हुआ, when you find the determinant it is not 0, they are called consistent. It has unique solution which we did in IPE, in Cramer's method, inverse method, Gauss-Jordan method. अपन जो इंटरमीडिएट में करें ना फर्स्ट ईयर में, वो जो सॉल्व करें ना इक्वेशंस, वो क्या है, कंसिस्टेंट मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। whenever you got determinant 0 you can directly write no solutions there. okay, अगर 0 हुआ, इसमें भी दो केसेस आते, इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट हैविंग मेनी सॉल्यूशंस। इनकंसिस्टेंट मतलब अगर determinant is equal to 0, at least one of delta 1 delta 2 delta 3 are not 0, it is called inconsistent solution and it has no solution, okay, अगर delta 1 delta 2 delta 3 भी 0 हो गए, consistent, it has many solutions। and when delta is not equal to 0 and delta 1 delta 2 delta 3 is equal to 0, they are having trivaluable solution, that is x is equal to y is equal to z is equal to 0। ओके, ये आपको मैट्रिक्स इक्वेशंस में आते हैं। नेक्स्ट, सो लेट अस ट्राई सम प्रॉब्लम्स ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इफ आई कीप r इज इक्वल टू 1, क्या आता है इसका, बोलो सब्स्टिट्यूशन मेथड में, इफ आई सब्स्टिट्यूट r इज इक्वल टू 1 एंड n is equal to 1, ट्रिक है ये, we are using only a shortcut trick, shortcut trick से कर रहे हैं। okay, you no need to find the whole thing, okay, just substitution some values here, then क्या होता है इसका, 2 power 0 1 होता, 2 into 3 power 0 1, 4 into 5 power 0 1, alpha beta gamma, 2 power 0 is 1 1 1, sorry 2 power 0, क्वेश्चन क्या है वो, r इज इक्वल टू 1 है ना यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, 2 पावर n माइनस 1, 3 पावर 1 माइनस 1, 5 पावर n माइनस 1, इसमें क्वेश्चन में n माइनस 1 है। ओके, then what you will get, anything power 0 1 ही होता ना।
4 इंटू 1 आता ना. ओके, एक सेकंड. ओके, r इज इक्वल टू 1. क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करना शायद. ओके, इसको होल्ड करो, मैं समझाता हूँ. इसमें तो क्या करो आप, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 भी डाल सकते हैं, और जल्दी आना बोले तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 भी डाल सकते हैं. देन व्हाट यू विल गेट, 1 1 डाले तो भी आपको आता, नो इशू. ओके, तो आपको क्या आता है, 0 1, c इज इक्वल टू 1 ही डालो, तो 1 1 माइनस 2 2, इधर क्या आता, 1 2 माइनस 2. ओके, सो इसका डिटरमिनेंट क्या होता, 0 माइनस 1 इंटू माइनस टू प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2, 4 प्लस 4 8. सो 4 प्लस 4 8 है. ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, अल्फा. तो इधर 8 आ गया, ये LHS है, इज इक्वल टू RHS में सब्स्टिट्यूट करो आप, 0 प्लस 1 1 प्लस 1, ये CA 0 प्लस 1 1 इंटू 2 इंटू 1, 2 अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 8/2, अल्फा इज इक्वल टू 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. ये एक मैट्रिसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट इजी मेथड है डिटरमिनेंट्स करने के लिए. ओके, इन दिस केस इफ यू सब्स्टिट्यूट 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, तो ये सिंपल आता क्या है, 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 3. डिटरमिनेंट क्या रहता है इसका, 3 इंटू 9 माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3, 8 माइनस 4 4, 24 माइनस 4 माइनस 4, क्या होता है, 16 आ रहा. 16 आ रहा ना. इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूट करें, तो फर्स्ट में ऑप्शन ए में सब्स्टिट्यूट करें तो 3 क्यूब 27 रॉन्ग, ऑप्शन बी 0 रॉन्ग, ऑप्शन सी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16, इट में बी करेक्ट, 8 रॉन्ग. सो इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड में ऐसा कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, इसमें x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2 डालो, कुछ भी डालो तो आपको क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. सो इसका डिटरमिनेंट क्या है, 1 ही आता ना, इसका डिटरमिनेंट 1 ही आता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1. सर 1 कहीं को नहीं डाले सर, कहते लॉग में log 1 टू द बेस 1 कहीं को रहता है बोल के, 1 भी डाले तो सेम आता आपको. ये GP log डिटरमिनेंट ऑफ GP और AP, आंसर इज 0. ओके, नेक्स्ट, यहाँ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, सॉरी x इज इक्वल टू 0 डालो, 0 सब्स्टिट्यूट करें तो क्या होता है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सॉरी 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल आता. दैट इज नथिंग बट 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2 1 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल 24. सो 1 इंटू 48 माइनस 6 माइनस 1 इंटू 24 माइनस 12 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 4, 42 माइनस 12 प्लस 4, 34 आ रहा, 34 करेक्ट है. डिटरमिनेंट कितना है, 0 फैक्टोरियल क्या है,
जीरो फैक्टोरियल 1 ही है ना। नेक्स्ट कितना होता है, करेक्ट है 48 माइनस 36 आ रहा, तो 48 माइनस 36 क्या आ रहा, 12 माइनस 12 प्लस 4 आ रहा। ओके, 4 सब्स्टिट्यूट किस में आता, ऑप्शन 1 में 2 इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 1 2, रॉन्ग। ऑप्शन 2 में 2 इंटू 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 4, करेक्ट। ऑप्शन 3 2 इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 3 1 इंटू 6 12, रॉन्ग। ऑप्शन डी 2 इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, पक्का ये बड़ा होता, रॉन्ग है। सो दिस इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन में देखो, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट, फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का फार्मूला क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला है इसका। ओके, दिस इज फार्मूला वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इधर ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 है। व्हाट इज डिटर्मिनेंट हियर, डेट ए क्या होता, 2 इंटू 0 माइनस 16 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 8 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 7 माइनस 32 माइनस 8 प्लस 28, सही है ना। मैं कुछ गलत करें तो बोलो, 40 प्लस 28 माइनस 12 आ रहा, माइनस 12। ओके, तो ये डिटरमिनेंट क्या है, माइनस 12 होल पावर n का मतलब क्या है 3 माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 12 2 स्क्वायर पावर 2 माइनस 12 होल पावर 4, ये 8 रहने से पॉजिटिव होता, 12 पावर 4 लिख दे सकते हैं। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेम इसका भी फार्मूला क्या है, डेट ए होल पावर n माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस इज द शॉर्टकट फार्मूला, ट्रिक है ये। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ट्रिक, अनदर ट्रिक देयर इज, इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ऊपर डायरेक्टली डायगोनल मल्टीपल, तो डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें तो डेटा आता, डेटा इज इक्वल टू आई इंटू 1 प्लस आई इंटू आई इंटू आई क्या है आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस आई। ओके, आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस ऑफ, सो इट इज 1 प्लस आई। क्वेश्चन में कुछ एक मिस्टेक है, एक सेकंड, तो ये चाहे ना, तो ये क्या होता 1 प्लस आई, ये कौन सा मैट्रिक्स है, 1 प्लस आई होल पावर 4 आता, 1 प्लस आई होल पावर 4 बोलते क्या है, 1 प्लस आई होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई होल स्क्वायर, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, आई स्क्वायर 1 कैंसिल है, प्लस और माइनस होते, 2i इंटू 2i 4i स्क्वायर 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a पावर 200 क्या होता है, वेन एवर देर इज ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट क्या होता, a पावर 200, a पावर 100 का, इसको अगर आप वो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉलो करना है ना वो करो आप, क्या है ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल टू 0, सो अकॉर्डिंग टू दैट ए स्क्वायर माइनस ट्रेस क्या है 0, ट्रेस इज 0 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है ए डी माइनस बी सी माइनस 48 प्लस 50 दैट इज 1 आई इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आई, ए पावर 4 इज इक्वल टू आई आता, तो ये ए पावर 2000 बोले तो आई चाहता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसे के टिपिकल दिए, जब आपको ये फार्मूला डालना है ट्रेस ऑफ ए प्लस डेट ए आई, तो ये क्या होता है यहाँ ट्रेस क्या है इसका भी 0 है, डेट क्या है
-25 -21 -46 है। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर 0 प्लस -46i, ए स्क्वायर -46i इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 46i। सो ये पावर 500 बोले तो दो तरफ 250 से मल्टीप्लाई करना। ओके, ए स्क्वायर होल पावर 250, 46i होल पावर 250, ये ए पावर 500 होता, 46 होल पावर 250 इंटू आई पावर एनीथिंग इज आई। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको ये तुक्का भी देखना है, देखो ऐसा कंपेयर करना, नन तो फर्स्ट नहीं है ना, एलिमिनेशन मेथड में फर्स्ट इसको निकाल देना, शॉर्टकट देखो। अब चीटिंग कोड कैसा कर सकते हैं बोले तो चीट कोड देखो बेटे, यस। अगर ऑप्शन में क्वेश्चन कुछ भी समझ में नहीं आया, ये फर्स्ट निकाल देना। इन दोनों में जो है सब में 46 का कॉमन है। ओके, तो इन दोनों में क्या कॉमन क्या है, 46 पावर 250 कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, आई। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस एज ऑप्शन। समझ में आया? क्या आता, आहिस्ता आहिस्ता आता, बहुत आसान है ना। सिमेट्रिक वे में चेक कर लेके आंसर को एलिमिनेट करना, करके करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना। इसमें चांसेस थोड़े बहुत 75% करेक्ट होते, 25% यू मे बी रॉन्ग। ओके, दैट इज अनदर केस। नाउ ये तो क्या है, लोअर ट्रायंगल है ना, डायरेक्ट इसका डेट क्या होता, डेट इज इक्वल टू -1 इंटू 2 इंटू 7 -14, डायरेक्ट कर दे सकते, नो नीड टू फाइंड द डेट। अब ये प्रॉब्लम में क्या है आपको, 0 Q R P माइनस A माइनस B B माइनस C 0 0 C माइनस B। अब ये दोनों को इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करें तो माइनस आता, देन यू विल गेट P A माइनस B B माइनस C 0 Q R 0 0 C माइनस B। सो एक लोअर ट्रायंगल है, तो डिटर्मिनेंट क्या रहता है, इसका डायगोनल रहता, माइनस ऑफ, माइनस बाहर है, P Q C माइनस B। अगर माइनस इसको दिए, P Q B माइनस C इज द आंसर। सो व्हिच वन इज करेक्ट ऑप्शन? ओके, अगर इसमें भी अगर तुक्का करना है तो वैसा ही कर सकते हैं, आपको कॉमन कॉमन देख लेते, सब में कॉमन है, P Q कॉमन है, ये दोनों में रिजेंबल हो रहे। ओके, तो उसके हिसाब से आप आंसर कर सकते हैं। नाउ ये वाला देखो, जेई का क्वेश्चन है ये, b पावर -1a b इज इक्वल टू 2i। ओके, नाउ b पावर -a b, इसको i के जगह b इंटू बी बी इनवर्स इंटू b लिख सकते हैं ना। ओके, नाउ b इनवर्स कॉमन ले ले तो ab माइनस 2b आता, सही है ना। अब इन दोनों में से b कॉमन लिया तो a माइनस 2i, a माइनस 2, खाली 2 नहीं रहता, i रहता b। ओके, अगेन ये दो कैंसिल होता, तो अपने को बच्चा क्या है, 2i है। सो ओके, व्हाट इज a माइनस 2i? a माइनस 2i बोले तो आप डायरेक्टली कर सकते, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 -1, 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 2 4, 2, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना ये। आपको क्या है, 2 माइनस 1, 1 माइनस 0, 2 माइनस 0, 6 माइनस 0, 2 माइनस 2, 11 माइनस 0, 3 माइनस 0, 3 माइनस 0, 2 माइनस 2। सो यू विल गेट 0 1 2 6 0 11 3 3 0। इसका डिटर्मिनेंट क्या होता, 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 33 प्लस 2 इंटू 18 माइनस 0, 33 प्लस ये कितना है 36, क्या रहा 69। इन इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 69 कैन बी रिटन एज टू प्रोडक्ट्स क्या है 23 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। सो इसका सम क्या है 23 प्लस 3 26। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई, अरे आई असल आई का फार्मूला जो है ना मेन। ओके, क्यों बोलते दोनों इन्वर्स करें तो 1 ही आता ना, 1 ट्रिग्नोमेट्री में 1 का मतलब, सॉरी
मैट्रिसेस में 1 का मतलब क्या है, आइडेंटिटी है, 1 0 0 0 1 0। मैट्रिसेस में 1 नहीं रहता, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जैसा नंबर सिस्टम में 1 है, मैट्रिक्स में आई है। ओके, नाउ ये वाला देखो, व्हाट इज गिवन, 2a प्लस 3b माइनस 4i 3 15 20 28। आई एम मल्टीप्लाइंग द सेकेंड इक्वेशन विथ 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3a प्लस 3b प्लस 3i, देन यू विल गेट 12 18 24 42। इन दोनों को अगर मैं सेपरेट करा, ये दो कैंसिल हो आते, सो व्हाट यू विल गेट, माइनस ए माइनस 7i इज इक्वल टू, सेपरेट करें तो क्या होता, -9 हाँ कुछ भी आता। ओके, अगर माइनस भी कॉमन निकाले तो 9 आता। ओके, यस 7 है मतलब 7007। इन दोनों को सेपरेट करें तो आंसर क्या आता, यहाँ 2 आता। 2 है, सो ऑप्शन क्या है इसमें, ये वाला ऑप्शन है। ओके, जल्दी करना है सर, मैं सुकून से कर लेता हूँ तो पूरा भी कर सकते, नो इश्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स रहने से इसका डेट क्या है, 5 इंटू अल्फा इंटू 5। ओके, नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, आपको सेम एलिमेंट्स इधर कुछ भी रहूंगा, बट इसमें जब स्क्वायर करते हैं ना, आपको स्क्वायर ही आता, 5 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 5 स्क्वायर ही आता। तो इसका डेट क्या होता, डेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 दिया, इसका डेट क्या है, 5 स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 5 स्क्वायर, अल्फा इज इक्वल टू 1 by 5। a power 26, if you find a square you will get 0 0 0। when a square is equal to 0, a power anything is 0। okay, now he gave, they are, first of all they are skew symmetric matrix, moreover a into a transpose is equal to I। मतलब आपको a1 ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, सो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 शुड इक्वल टू 0। सो ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, 4 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू -2। सिमिलरली इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू, 4 minus 2 plus 2b is equal to 0, 2 plus 2b is equal to 0, 2b is equal to -2, b is equal to -1। Now what we need, a by b plus b by a, -2 by 1 -1 plus -1 by -2, 2 by 1 plus 1 by 2, LCM is 2, 4 plus 1 that is 5 by 2 is the answer। okay, समझ में आया? ओके, सो दिस इज मैट्रिक्स का ओवरऑल रिवीजन विथ शॉर्टकट्स है। ओके, तो आप एक बार लिख लो इसके आंसर्स। वो एक क्वेश्चन मिस हो गया ना।